آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ جی ایس ٹی ریاست کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ پیٹرول میں ایتھنول ملایا جا رہا ہے، آلودگی بڑھ رہی ہے، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں۔ اکبر اویسی کا اسمبلی میں خطاب۔ ریاست تلنگانہ میں 490 نئے وینٹیلیٹرز کی فراہمی، نیمز حیدرآباد کو 150 ملیں گے۔ اسمبلی میں وزیر صحت کا اعلان۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ اکنامک یونیورسٹی قائم کریں، ڈگری کالجز میں نئے کورسز متعارف کیے جائیں، خانگی یونیورسٹیز کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں، حکومت کو قائد مجلس اکبر اویسی کا مشورہ۔ میری لڑائی جائیداد کے لیے نہیں، عزت و احترام کی لڑائی ہے۔ کونسل میں خطاب کے دوران کے سی آر کی دختر کویتا جذباتی اور اشکبار۔ بیلٹ پیپر پر بلدی انتخابات کروانے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ، بیلٹ پیپر کے لیے درکار بیلٹ باکس بطور پیشگی تیار رکھے جائیں، عہدیداروں کو دی گئی ہدایت۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ایک اور اہم فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریاست میں بلدی انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بیلٹ پیپر کے لیے درکار بیلٹ باکس بطور پیشگی تیار رکھے جائیں۔ واضح ہے کہ سال 2014 میں بلدیاتی انتخابات ای وی ایم کے ذریعے منعقد کیے گئے تھے، جبکہ 2020 میں کرونا وبا کے باعث بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کروائے گئے تھے۔ اس مرتبہ اگرچہ ای وی ایم کے استعمال کا بھی امکان تھا، تاہم حکومت نے بیلٹ پیپر کے طریقہ کار کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے تلنگانہ آج قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ جی ایس ٹی ترمیمی بل پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اپنی تشویش سے ایوان کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کی وجہ سے مرکزی حکومت چل رہی ہے، لیکن ریاستی حکومت کو اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قائد مجلس نے حکومت سے سوال کیا کہ آخر جی ایس ٹی سے کیا ریاست کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ ریاست کا ٹیکس حکومت کو جاتا ہے اور پھر حکومت اسے ریاست کو واپس کرتی ہے، لیکن تلنگانہ کو اس کا پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے اس موقع پر انکشاف بھی کیا کہ ایک مرکزی وزیر کے بیٹے کی ایتھنول کی کمپنی ہے اور ایتھنول پیٹرول میں ملایا جا رہا ہے، جس سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں، جبکہ یہ ہندوستان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ سر، اگر آج تلنگانہ اسٹیٹ اگر قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ جی ایس ٹی ہے۔ سر ناؤ یہ جی ایس ٹی کا سب سے خطرناک، آئی وڈ سے موسٹ ڈینجرس تھنگ واٹ از ایگزسٹنگ ان جی ایس ٹی از سر واٹ ایور ٹیکسز کمز فرام دا اسٹیٹس، اس کے بعد میں وہ گورنمنٹ آف انڈیا میں جاتا ہے اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا گیوز ان ریٹرن ٹو دا اسٹیٹس not on the collection that has been made. اب اس میں کیسا ہے سر کہ فار ایگزامپل اتر پردیش has a large number of population. I am earning, other states are earning, Telangana is earning, Andhra is earning, Karnataka is earning, but they are not getting what they are earning. They are getting less share because their population is less. UP is getting more, Bihar is getting more, all the states which have more population are getting more. So I really don't understand, sir. Why was this GST? Sir, I would say that کہ یہ جی ایس ٹی کی وجہ سے the government of India is surviving, I would say, sir. If the GST wasn't there, it would have been very tough for government of India, sir.
Sir, I have all the details, sir. Goods and service taxes, sir. ये इसमें कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी पर मुबाहिस के दौरान बीजेपी के अरकान के एहतजाज और शोरगुल पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जीएसटी के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के हुकूक़ को सलब कर रही है और रियासत की मईशत को कमज़ोर किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कार्रवाई का वाकआउट किया। Honorable Speaker, sir, when the bill is getting passed, so if one member wants to protest, a right has been given. So I stand here protesting and opposing this bill, and I just want to lodge my protest by saying that GST has ruined the state economy. The government of India has snatched away the right and the money of the state government, and smaller states are suffering, sir, and Telangana state is not even getting 25%, and the government of India is mixing 15% of ethanol, and they are not even reducing 15% rate of the petrol, sir. So I think this bill is disastrous, sir, and the corrections which have been made कि आज स्लैब सिस्टम को कम करें, सर, कम करने का मतलब ये है कि they are accepting कि they were wrong. So the amount which has been collected all these years because of the slab was wrong. I protest, sir, and I am walking out from this bill, sir. We are not supporting this bill, sir. Thank you, sir. कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि लंदन ऑफ इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तर्ज पर रियासत में डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ इकनॉमिक्स व मैनेजमेंट कॉमर्स का क़याम अमल में लाया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह माहिर मईशियत थे और उनकी खिदमात को खराज पेश करने का यही एक बेहतरीन तरीक़ा है कि उनसे मौसूम यूनिवर्सिटी क़ायम की जाए। कि सर मनमोहन सिंह साहब लेट प्राइम मिनिस्टर के खिदमात को ये मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता कि वो जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की भी कैबिनेट में थे, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो आज जो मुल्क जो खुशहाली व तरक्की को देख रहा है वो उनकी दूरअंदेशी थी, जिसकी वजह से आज मुल्क में आज भी हम तरक्की देख रहे हैं। सर मैं चाहूँगा और ये भी बतलाऊँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या कैबिनेट में आने से पहले उनके नॉलेज और उनके मालूमात इतनी ज़्यादा थी, इतनी मशहूर थे वो कि हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में उनको बुलाकर वर्ल्ड इकॉनमी में या वर्ल्ड इकॉनमी के जो फोरम्स होते थे उसमें उनको मदऊ किया जाता था, इनवाइट किया जाता था, उनसे लेक्चर्स लिए जाते थे और उनसे गाइडेंस भी लिया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी अपने मुल्क की इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए उनको ख़ास उनके मशवरे और ख़िदमात लिए थे। सर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से, हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा, जैसे कि लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स LSE एक मशहूर यूनिवर्सिटी है लंदन की, वैसे ही शहर हैदराबाद में हम भी अगर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स मैनेजमेंट मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ऐवान असम्बली में डिग्री कॉलेजेस में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नए कोर्सेज की फरहमी के अलावा खानगी यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। ऐवान असम्बली में कायद मजलिस ने कहा कि हुकूमत ने खानगी यूनिवर्सिटी बिल को मंजूर किया, नई यूनिवर्सिटीज़ क़ायम की गई, लेकिन नई यूनिवर्सिटीज़ में दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ दस्तयाब नहीं है। तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कायद मजलिस ने बताया कि बाज़ खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे कोर्स ऑफ़र किए गए हैं जिसे AITC की मंजूरी नहीं है। कोर्स की तकमील के बाद तलबा को सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि डिग्री कॉलेजेस में वहीं पुराने कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, नए कोर्सेज मुतारफ़ किए जाने चाहिए। कायद मजलिस ने मुतालबा किया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ एक इजलास तलब किया जाए ताकि इन तमाम मसाइल पर गौर किया जा सके।
the detailed report been made public, sir? Because I was trying to search for the report as to what is there in the report, what are the silent features of the report, and what exactly is the report saying. So that, sir, the reason for me asking is that, sir, we are establishing universities, but unfortunately, the universities do not have a proper infrastructure, nor have a required teaching staff. Faculty members are not there. So, sir, universities are getting established. But, sir, after completing the courses in universities, the question arises is that, why after completing the courses and having a degree or a postgraduate degrees also, the youth of our nation and also our state of Telangana, why are they not getting jobs? Why are they unemployed? So, sir, if the courses are being redesigned or, are re-looked into, so we should make sure that job opportunities are also created. It is so unfortunate that no jobs are being created and everybody is looking on government jobs. Why only on government jobs, sir? We can also provide them with private jobs. So this is a very important thing, sir. And I would like that, if not, sir, at least a copy of that report can be given to floor leaders or to me also, so that we can study and our knowledge also will improve, sir, and we'll have more knowledge, sir. Sir, also on the same page, sir, मजलिस की रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने निज़ामिया तिबी कॉलेज चार मीनार को दूसरे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का मुतालबा किया है। आज असम्बली में मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नुमाइंदगी की थी और उनकी नुमाइंदगी पर निज़ामिया तिबी हॉस्पिटल के लिए पहले 52 करोड़ और फिर 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन फंड्स जारी ना होने से कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तारीख़ी हॉस्पिटल जहां यौमिया सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं, फौरी तवज्जो का तलबगार है। मीर जुल्फ़िकार अली ने शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में बैरूनी रियासतों के शहरियों का इलाज से इनकार पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई और कहा कि ये हिंदुस्तान के शहरी हैं, उन्हें भी सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज फराहम किया जाए। I am thankful to you, Honorable Speaker Sahab, you have given me the chance. The government is providing ventilators and other medical equipments in government hospitals, like Usmania, Gandhi and NIMS and other government hospitals. ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन दवाखानों में इन तमाम चीज़ों को आप और बढ़ा रहे हैं, इसके लिए काफ़ी पैसा आप सैंक्शन कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि इन हॉस्पिटल्स के अलावा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल है चार मीनार का, जिसके लिए अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि 52 करोड़ के लिए, लेकिन जब हमने इलेक्शन के बाद ही इस असेंबली में हमने इस मुद्दे को उठाया, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का। इन्होंने इमीडिएट इसी फ्लोर से 52 करोड़ रुपए को सैंक्शन उन्होंने किया। उसके बाद हमने कहा कि और 30 करोड़ की ज़रूरत है, उसके लिए भी उन्होंने सैंक्शन किया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इन लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट बताया जब कभी हमारी नुमाइंदगी के ऊपर, लेकिन आज उस दवाखाने के लिए पैसा तो सैंक्शन हुआ लेकिन पैसा रिलीज़ नहीं हुआ साहब। अब तक हमने बार बार नुमाइंदगी की, फ्लोर लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी नुमाइंदगी की, मैं भी बार बार हमारे मिनिस्टर साहब से मिला, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिला, आज तक उसका अकाउंट नहीं खुला गया। सब काम तो शुरू हो गया
काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, लेकिन पैसा रिलीज नहीं हुआ है, गुत्तेदार को काफ़ी परेशानी हो रही है और काम रोक रहा है साहब। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उसका इमीडिएट उसका अकाउंट खोला जाए और वो पैसे इमीडिएट उसको रिलीज किया जाए सर। और दूसरी बात, निजामिया हॉस्पिटल का, यूनानी हॉस्पिटल का ये हाल है साहब, वहां पर कोई स्टाफ बराबर नहीं है साहब, प्रोफेसर वहां पर नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट टाइम उनके सीट्स 94 सीट्स यहां से चले गए थे साहब। लेकिन हमारी नुमाइंदगी के ऊपर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर, सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहब से मिला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबा से मिला, इमीडिएट उनके इंटरवेंशन से वहां पर काम हुआ और फिर से सीट्स को रेस्टोर किया गया। आज वहां पर बच्चों को एडमिशन मिला। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये भी एक दवाखाना है जिसको हमारी तवज्जो देने की जरूरत है साहब। यहाँ पर आज तक इतना नेग्लिजेंस हुआ है, इतना नेग्लेक्ट किए हैं उसको, आज आप देख सकते हो उसकी क्या हालत हुई। आज हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। और एक बात, उसके हॉस्टल के लिए भी हमने कहा था, हेल्थ मिनिस्टर साहब से हमने कहा था, पर्सनली मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मिलकर कहा था कि उन्होंने उसी वक्त उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबा से कहा हॉस्टल के लिए वहां पर जगह नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि रियासत के सरकारी हॉस्पिटल्स में 490 नए वेंटिलेटर्स फराहम किए जा रहे हैं और इससे वेंटिलेटर्स की तादाद रियासत में 1790 हो जाएगी। असम्बली में वज़ीर सेहत ने बताया कि निम्स हैदराबाद को 125 वेंटिलेटर्स के अलावा 850 का अमला फराहम किया जाएगा। 25 किलोमीटर के अहाते में डायलिसिस सेंटर कायम किए जाएंगे। एम्बुलेंस की जानिब से कॉल करने पर 10 मिनट में मुकाम वाक़े पर रिसाई को यकीनी बनाया जाएगा और 90 एम्बुलेंस की नई गाड़ियां फराहम की जाएंगी। तेलंगाना की खातून वज़रा सीताक्का और कोंडा सुरेखा ने समीक्षा सारालिमा के पुजारियों के हमरा गवर्नर जशनीदो वर्मा से लोक भवन पहुंचकर मुलाकात की। रियासती वज़रा ने मैदाराम समीक्षा सारालिमा महाम जात्रा में शिरकत के लिए गवर्नर को दावतनामा दिया और शालपोशी की। जात्रा के इंतजामात से मुतालिक भी गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। बीआरएस से इस्तीफ़ा दे चुकी रुकन कौंसिल की कविता ने कहा है कि उन्होंने आज फिर अपना इस्तीफ़ा पेश किया है और उन्हें उम्मीद है कि सदरनशीन उनका इस्तीफ़ा कबूल करेंगे। कविता ने अपने दर्द को बयान करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी से उनकी मुअत्तली इंतहाई तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ थी। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने आज तेलंगाना कौंसिल में खिताब करते हुए जज्बाती और अश्कबार हो गईं। उन्होंने कहा कि उन पर जायदाद को लेकर ख़ानदान में झगड़े पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उनकी लड़ाई इज़्ज़त व एहतराम के लिए है। वो अपने भगवान और 2 बच्चों की कसम खाती हैं कि उन्होंने जायदाद के लिए कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं किया, सिर्फ इज़्ज़त के लिए वो जद्दोजहद कर रही हैं। कविता ने यह भी कहा कि उन्होंने ख़वातीन, किसानों और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के लिए मुसलसल काम किया है। तेलंगाना तहरीक में भी उनका रोल रहा है। कविता ने सदरनशीन कौंसिल से उनका इस्तीफ़ा कबूल करने की दरख्वास्त की। कविता ने यह भी कहा कि पार्टी में जो बदउनवानियाँ हुई उसमें से भी उन्हें पार्टी क़यादत को उन्होंने वाकिफ़ करवाया था। सेक्रेटेरिएट, अमरजीत अम्बेडकर स्टैचू और नए कलेक्ट्रेट के दफातर की तामीर के दौरान भी जो बदउनवानियाँ हुई थी उसे भी उन्होंने सामने लाया था। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस पार्टी से उनकी अलहदगी को लेकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష నా సస్పెన్షన్ని పొలిటికల్గా వాడుకోవాలని ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో వచ్చినటువంటి చీలికలను చాలా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ప్రత్యేకించి వారు నాపై చేస్తున్న ఆరోపణ అధ్యక్ష, ఇది ఆస్తుల పంచాయతీ, ఆత్మగౌరవం పంచాయతీ కాదని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. నేను ఇవాళ మీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్న అధ్యక్ష,
అధ్యక్ష నాకు దైవభీతి ఎక్కువ అధ్యక్ష, దైవ భక్తురాలు నేను. లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మా ఇంటి దేవుడు అధ్యక్ష. ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఒక మహిళగా నాకు 2 కొడుకులు ఉన్నారు అధ్యక్ష, వాళ్ళిద్దరి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తా ఉన్నాను. నాది ఆస్తుల పంచాయతీ కాదు అధ్యక్ష, నాది ఆత్మగౌరవం పంచాయతీ. నేను ఏ విషయమైనా, ఉద్యమకారుల విషయమైనా, బీసీల విషయమైనా, మహిళల విషయమైనా ఏదైనా నిలదీసి అడిగినా అధ్యక్ష, రేపు కూడా అడుగుతా అధ్యక్ష. అందులో ఎట్టి పరిస్థితులలో కాంప్రమైజ్ అయ్యే విషయమే లేదు అధ్యక్ష. रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने रियासती असम्बली में बीवी रामजी कानून के खिलाफ लाई गई करारदाद की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत आवाम को गलत मालूमात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि आखिर राम जी के नाम पर कांग्रेस को क्या तकलीफ है और क्यों उसकी मुखालिफत की जा रही है। बीजेपी लीडर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मनरेगा स्कीम के तहत मरकज़ की तरफ से फराहम किए जा रहे फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। बीजेपी 125 दिन काम दे रही है, मनरेगा के फंड्स के साथ हेर फेर की गई। अगर मनरेगा में गांधी का नाम था तो बीवी राम जी में राम का नाम है, इसलिए कांग्रेस उसकी मुखालिफत कर रही है। रामचंद्र राव ने कहा कि अगर इसे तेलंगाना में नाफिज नहीं किया गया तो रियासत की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तेलंगाना असम्बली के पास वजीफ़याब मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। वजीफ़याब मुलाजमीन बकाया जात की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाजन असम्बली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने इस मौके पर एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मौके पर धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। वजीफ़याब मुलाजमीन ज़ेल तिवा ग्रानी अलाउंस और दूसरे बकाया जात की फौरी इजराई का मुतालबा कर रहे थे। फ़ोन टैपिंग के केस में बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आला अदालत ने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से हरीश राव के खिलाफ फ़ोन टैपिंग मामले में तहक़ीक़ात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बताया जा रहा है कि बीआरएस लीडर के खिलाफ नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। कामाठीपुरा पुलिस स्टेशन के महाराजगंज के इलाके में हुए हमले में ज़ख्मी नौजवान इलाज के दौरान जान बर ना हो सका। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते को रवि नामी शख्स ने अपनी बीवी पूजा के आशिक अमित पर मुहलिक हथियार से हमला किया था। उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वो फौत हो गया। बताया जाता है कि रवि और पूजा की शादी 10 साल पहले हुई थी। इस दौरान पूजा की हुसैनी आलम के साकिन अमित से दोस्ती हो गई। रवि ने अपनी बीवी को अमित के साथ रंगे हाथों पकड़ा था और उसे इन हरकतों से बाज आ जाने की ताकीद भी की थी। ताहम बीवी के ताल्लुकात जारी रहे तो उसने अमित को ही निशाना बनाया। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना नारायणखेड़ ज़िले के मधुर मंडल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्कूली तालिबात एक गाड़ी पर लटकती हुई जाती नजर आईं। बताया जाता है कि स्कूल वक्त पर पहुंचने के लिए तालिबात को अपनी जान जोखम में डालनी पड़ रही है। मुकामी सरपरस्तों ने कहा कि स्कूल के औकात में बसों की अदम दस्तियाबी की वजह से तलबा को इस तरह का जोखम उठाना पड़ता है और गाड़ी में सवार होना पड़ता है। हुकूमत से फौरी सिलसिले में मुतालबा किया गया है कि स्कूल के औकात में ज़ायद बसें चलाई जाएं। हैदराबाद एनएमडीसी मोड़ के पास एक हैवी कंटेनर उलट जाने की वजह से 5 घंटों तक ट्रैफिक मुतासिर रही। बताया जाता है कि 25 साला अहमद कंटेनर को चला रहा था, मोड़ पर कंटेनर उलट गया। इस वाक़े की वजह से मसरूफ़ शाहराह पर 5 घंटों तक ट्रैफिक मुतासिर रही। आसिफ नगर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया।
పెడుతుంది సార్ అంటే అవతల ప్లేన్ ఉంది బీచ్ అవతల ప్లేన్ ఉంది ఇతర ప్లేన్ అవతల ప్లేన్ ఉంది. तेलंगाना गदवल ज़िले गुट्टू मंडल के माचल्ला देहात के मुजाफाती इलाके में एक शख्स की लाश पाई गई है। लाश के पास शराब की बोतलें में थी। शुबा है कि शराब नोशी के बाद इस शख्स का कत्ल किया गया। पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया। पुलिस ने सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। चंद्रानगुट्टा इलाके में एक शराबी ऑटो ड्राइवर ने हंगामा खड़ा कर दिया था और नशे की हालत में सांप दिखाकर ट्रैफिक पुलिस को डराने की कोशिश कर रहा था और बिल आखिर पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक चंद्रानगुट्टा चौराहे पर हफ्ते की रात ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चला रही थी। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर को रोककर जांच की गई तो रीडिंग 150 आई। इस पर पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ऑटो जब्त कर लिया। उसके बाद ड्राइवर ये कहकर ऑटो के पास गया कि उसका सामान अंदर है और अचानक ऑटो में से एक सांप निकाल लिया। उसने सांप को हाथ में लपेट कर पुलिस को धमकाते हुए हंगामा आराई की। इससे पहले कि मुलाजमीन पुलिस उसे पकड़ लेते वो मुकाम वाक़े से फ़रार हो गया था। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने आखिरकार इस नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त सैयद इरफान के तौर पर की गई है, जो पहाड़ी शरीफ का रहने वाला बताया गया है। उसने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि सांप जिंदा नहीं था बल्कि मुर्दा था और इसने जो हरकत की उस पर वो माफ़ी चाहता है। उसने कहा कि उसका ऑटो पुलिस छोड़ दे, इसी मकसद के तहत उसने ये हरकत की थी। वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। हो गई साहब, अब से पुलिस वालों के करीब नहीं आते, ड्रिंक भी नहीं करते, ऑटो चलाना छोड़ देते साहब। अब से गलती नहीं करते साहब। गलती मैं करा, सांप दिखा के डराया साहब, माफी चाहता हूँ साहब, गलती हो गई। पूरे से माफी चाहता हूँ, पूरे पब्लिक से माफी चाहता हूँ, पूरा सोशल मीडिया पे डाल दो ये वीडियो साहब, गलती हो गई। सांप जिंदा था मरे हुआ था? मरे हुआ था साहब। जो पी के ऐसे हरकत करते उनके लिए क्या बोलेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूंगा, पी के गाड़ी नको चलाओ, मेरे सर का परेशान नको, और ऑफिसरों की रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट करो। पुलिस वालों की जितनी रेस्पेक्ट करेंगे वो अपनी रेस्पेक्ट करेंगे, अपने हाथ से काम करते हैं हिफाजत के हाथ से। बस आपकी गलती थी? मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मैं मरे हुआ सांप दिखा के डरा रहा था, चाबी आबी दे देते शायद बोल के, बस इतनी मेरी गलती है, माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम नहीं करते साहब, माफी चाहते हैं, आप सबसे माफी चाहते हैं हम। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 3 लड़कियों की परवरिश के दबाव से दिल बर्दाश्ता एक शख्स ने जहर पीकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक भकनूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला प्रहलाद की शादी 10 बरस कबल सुंदरैया से हुई थी। उनकी 3 कमसीन बेटियां हैं, जबकि अहलिया इस वक्त 9 माह की हामिला थी। 3 बेटियों के मुस्तकबिल के खौफ से उसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। केसरा पुलिस ने पीर 2 जनवरी को नागारम में जेवरात की दुकान पर दिन की रोशनी में डकैती के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद की शिनाख्त नाजिम अजीज़ कोटाडिया 39 साला, बिशु कर्मा एकेंद्र सिंह 24 साला, मोहम्मद सैफ अली उर्फ अडनम 23 साला, राजेंद्र सिंह उर्फ राज सिंह 19 साला और रतन सिंह बहादुर उर्फ रतन 23 साला के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि 2 मुश्तबा अफराद पहले गाहक बनकर दुकान में दाखिल हुए, जिसके बाद 2 दीगर कुल्हाड़ी और डमी पिस्तौल के साथ अंदर दाखिल हुए और दुकान के मालिक संदीप गहलवट पर हमला कर दिया। सर पर ज़ख्मी होने के बावजूद उसने मज़ाहमत की और ज़्यादातर जेवरात बरामद करने में कामयाब रहा। मुलजिम सोने के कुछ जेवरात लेकर मोटरसाइकिल पर फ़रार हो गए। तकनीकी तज्ज़िया और ऐनी शाहिदीन के मालूमात के बाद तमाम 5 मुलजिमीन को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि ज़्यादातर मुश्तबा अफराद आदी मुजरिम हैं। एक कार के अलावा जुर्म में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और एक डमी पिस्तौल भी जब्त की गई। जनवरी 2 को रॉबरी ऑफेंस रिपोर्ट हुआ। इसके वास्ते 5 अफेंडर्स को आज
मलकाजगिरी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और एसओटी टीम्स के द्वारा अप्रहेंड करके आज कोर्ट में रिमांड कर रहा है। इसमें A1 नजीम अजीब और A2 यकींदर सिंह, A3 मोहम्मद शेख, A4 राजेंद्र सिंह, A5 रतन सिंह। इसमें ये पूरा प्लान A1 के द्वारा प्लान किया गया और A2 इसमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए A2 से उसको मदद मिला। A1 A2 पहले भी इस तरफ का पर्टिकुलरली A1 पहले भी इस तरफ के ऑफेंसेस किया चावलगढ़ पीएस में और बेचल पीएस में 2024 में ये 2 ऑफेंसेस करके जेल को गया। उसके बाद इस पर पीडी एक्ट भी लगा दिया। आफ्टर पीडी एक्ट की नवंबर में जेल से रिलीज हो गया। रिलीज जेल में A2 से इसका परिचय हो गया। A1 A2 दोनों मिलके जेल से रिलीज होने के बाद ये ऑफेंस प्लान करके A3 A4 A5 का मदद लेके इसको पूरा एग्जीक्यूट किया। आज उसका गिरफ्तार करके रिमांड कर रहा है और इसमें बालाजी ज्वेलर्स का शॉप ओनर विक्टिम बन गया। उसका हालत भी अभी ठीक है। आरसीपुरम पुलिस ने 2 बैन रियासती आदि मुजरिमीन को गिरफ्तार किया जो तवील अरसे से पुलिस की नींद उड़ा रहे थे। मियाँपुर के एसीपी श्रीनिवास ने गिरफ्तारी की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। मुलजिमों में से एक आबेद 1995 से चोरियों में मुलविस रहा है। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में उसके खिलाफ 238 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। एसीपी ने बताया कि अगरचे माजी में जावेद के खिलाफ 2 बार पीडी एक्ट नाफिज किया गया था, लेकिन जेल से रिहा होते ही उसने अपनी मुजरिमाना सरगर्मियाँ दोबारा शुरू कर दी। एक और मुलजिम ओवैज़ 2006 से चोरी का इर्तिकाब कर रहा है। उसके खिलाफ 108 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज हैं। वो दोनों कॉलोनियों में घूमते थे, बंद घरों को चोरी करने के लिए निशाना बनाते थे। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि आबेद चोरी शुदा सोना अपनी बीवी के ज़रिए फ़रोख्त कर रहा था। इसी तनाजुर में एसीपी ने वाज़ेह किया कि वो जल्द ही इसे चोरी शुदा जायदाद फ़रोख्त करने में मुलविस होने के इल्ज़ाम में तहवील में लेगी ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके। ఈరోజు మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ క్రైమ్ స్టాఫ్ దీంట్లో ఒక బైక్ అఫెండర్స్ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో మెయిన్ అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సాయి కిరణ్ అని చెప్పేసి ఒకతను ఉన్నాడు. అతను ఇంతకుముందు కూడా 2 సార్లు అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. ఇతను నేటివ్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, రాజమండ్రి. ఇతను ఇంతకుముందు ఒకసారి రాజమండ్రి జైలుకు పోవడం జరిగింది. అలాగే హైదరాబాద్లో ఈ అత్తాపూర్ పోలీస్ నుంచి కూడా జైలుకు పోవడం జరిగింది. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే హై ఎండ్ వెహికల్స్ టార్గెట్ చేస్తాడు. అంటే ఏటీఎం జూక్ వెహికల్స్, అలాగే యమహా వెహికల్స్, అలాగే బుల్లెట్ వెహికల్స్. ఏవైతే హై ఎండ్ అంటే అది ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని ఎక్కువగా టార్గెట్ చేసి నైట్ పూట ఇతను వచ్చి వాటిని దొంగతనం చేయడం, అవన్నీ వాటికి ఇతను వేరే అఫెండర్స్ ఏం చేస్తాడు మామూలుగా అమ్మేయడం ఇవన్నీ చేస్తాడు. ఇతను ఏంటంటే దానికి ఆ ఇంజిన్ నెంబర్, ఛార్జీ నెంబర్ కూడా మొత్తం ఎరేజ్ చేస్తాడు. ఆ ఎరేజ్ చేసి దానికి ఇంకో కొత్త నెంబర్ ఇంకోటి వేస్తాడు. వేసేసి వీటిని అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇతన్ని మనము ఇన్ఫర్మేషన్ మీద పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇతనితో పాటు ఇంకా మిగతా 3 ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సాయి కిరణ్ మెయిన్ అఫెండరు, ఇతనితో పాటు లీలా సాయి అని ఒకతను, అట్లాగే సాయి ప్రసాద్ అని ఒకతను, ఇంకొకతను ప్రవీణ్ అనే అతను, 4 కలిసి చేస్తూ ఉంటారు. దీంట్లో ఒక అఫెండర్ ఆల్రెడీ ఇతను విజయసాయి అనే అతను, ఇతను ట్రాక్టర్ల అఫెండర్ వాళ్ళ అన్నతో కలిసి చేస్తూ ఉంటే ఇతన్ని ఆల్రెడీ అనకాపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇతన్ని ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నాడు. అతను కూడా మేము తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం మా దగ్గర కస్టడీలో 2 ఉన్నారు. ఇంకొక అతను యాబ్స్కాండింగ్, ప్రవీణ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో A4 అతను యాబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మన దగ్గర కస్టడీలో సాయి కిరణ్ ఒకతను, లీలా సాయి ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒకతను ఆల్రెడీ అనకాపల్లిలో ఉన్నాడు, ఇంకొకతను యాబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. దీంట్లో వీళ్ళు ఇప్పుడు దాదాపు 21 వెహికల్స్ మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర కింద ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ చాలా వాటికి ఇంజిన్ నెంబర్, ఛార్జ్ నెంబర్ మార్చేసినాడు. ఒక 2-3 తప్ప మిగతా వాటికి అన్నిటిగా మార్చడం జరిగింది. ఇవన్నీ వాళ్ళ ఓనర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాము. వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళని కోర్టులో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక కేటీఎం అఫెన్స్. అది ఈ గ్యాంగ్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళ మీద
చీటింగ్, ఫోర్జరీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇంజన్ నెంబర్లు ఇవన్నీ మార్చినారు కాబట్టి ఫోర్జరీ కేసులు కూడా వస్తాయి వీళ్ళ మీద. వీళ్ళ గ్యాంగ్ ఫైల్ కూడా ఒకటి మనం ఓపెన్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇది అఫెన్సెస్ కేసెస్, బైక్ అఫెన్సెస్. आंध्र प्रदेश के कोनासीमा ज़िले के मलिकापुरम मंडल एरुसमुंद्रा देहात में ONGC गैस के अखराज से सनसनी और अफरा तफरी देखी गई है. इंतज़ामिया ने गैस के मुबैना फैलाव के तनाजुर में करीबी 3 देहातों से आवाम के तखलिए की हिदायत दी है. कोहर की शक्ल में गैस फैलती हुई देखी गई. बताया गया है कि मरम्मती काम के दौरान अचानक गैस का अखराज हुआ और मुकामी आवाम में खौफ का माहौल देखा गया. हंगामी टीमों को भी मुकाम वाक़े पर रवाना कर दिया गया है. अमेरिका के मैरीलैंड में तेलंगाना की 27 साल खातून की लाश उसके अपार्टमेंट से दस्तयाब हुई है. मकतूला सिकंदराबाद की साकिन निकिता बोडशिला बताई गई है. वो अमेरिका में डाटा और स्ट्रेटजी एनालिसिस के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी. ये भी कहा गया है कि 31 दिसंबर को निकिता का कत्ल हुआ और इस वाक़े के बाद से अर्जुन शर्मा नामी शख्स लापता बताया गया है. समझा जा रहा है कि वो हिंदुस्तान फ़रार हो गया. पुलिस ने निकिता की लाश को तहवील में ले लिया. इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है. महलूक तालिबा के वालिद आनंद बोधिशीला ने बताया कि निकिता के साथ उनके अपार्टमेंट में 4 लोग रहा करते थे. उसका साबिक़ साथी उसे पैसों के लिए हिरासा किया करता था और जब उसकी बेटी ने रकम वापसी के लिए इसरार किया तो उसने उसका कत्ल किया और फिर हिंदुस्तान फ़रार हो गया. उन्होंने कहा कि ये कहना गलत है कि मफरूर बॉयफ्रेंड था. ग्लोरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से पुराने शहर के तलबा तालिबात में मुसाबकती इम्तहानात के दौरान ख़ुद एतमादी और वक्त की अहमियत को उजागर करने की गर्ज से ग्लोरी टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम GTRE का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसकी इनामी तकरीब ग्लोरी कॉलेज वाक़ शाहीन नगर में मुनक़िद हुई. इस तकरीब की सदारत मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अजहर ने की, जबकि मुफ्ती मोहम्मद सोहेल रहमान, सैयद कलीम वाइस चेयरमैन दक्कन NRI ग्रुप, नईम गौरी सीनियर जर्नलिस्ट, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली सहाफ़ी, सर्कल इंस्पेक्टर M सुधाकर, सैयद यूसुफ पटेल कांग्रेस कायद व दीगर ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की और खिताब भी किया. इस इम्तिहान में पहला रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म को 10,000 रुपये नकद रकम व मेमेंटो, रनर अप को 5,000 रुपये नकद इनाम और दीगर 17 टॉपर्स को 1,000 रुपये नकद और मोमेंटोज दिए गए. इसी तर्ज पर तमाम शुरा को असनादात भी दी गई. मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अजहर ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले के तहत पुराने शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स के 1,000 तलबा ने पहले राउंड में मुतालिका स्कूलों में ये इम्तिहान दिया, जिसके बाद इनमें से मुनक़िदा 300 तलबा और तालिबात ने दूसरे मरहले के तहत कॉलेज के अहाते में ये इम्तिहान तहरीर किया. 3 जनवरी को इन इम्तिहानात के नताइज जारी किए गए. इस मौके पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर मीर सिराज अली नवीद, प्रिंसिपल कॉलेज के अलावा असातिज़ा और तलबा के सरपरस्तों के अलावा दीगर भी मौजूद थे. 3 जनवरी सैटरडे ग्लोरी GTRE ग्लोरी टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम के अवार्ड सेरेमनी था, जिस पर नियरली 25 स्कूल से पार्टिसिपेट किए थे. फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के बाद नियरली 150 स्टूडेंट्स हैं जिनको सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से मैक्सिमम स्कूल्स को हम बधाई देते हैं कि उनका मैनेजमेंट, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जो उन पर ट्रस्ट करे हैं, उन पर बिलीव करे हैं और उनको मोटिवेट करे हैं. अगर मैनेजमेंट स्कूल्स के इसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करेंगे और इंकरेज करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो दे विल कम अप विद द न्यू एक्टिविटीज़ विद द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनको बेनिफिट होगा आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए. तो इसमें बहुत बड़ा रोल था मैनेजमेंट का और स्कूल्स मैनेजमेंट स्पेशली और पेरेंट्स का, जो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करे हैं और उनको आज इस मुकाम पर लेकर आए हैं. तो आज जो स्पेशल ऑल द स्कूल्स का टॉपर्स, क्योंकि कोई विनर नहीं होता है, कोई लूज़र नहीं होता है, तो हमारा मानना यही है
कि एवरीवन इज़ द बेस्ट, दे आर द लर्नर्स। अगर जो नहीं जीता है तो द बेस्ट स्टूडेंट वी सेलेक्टेड वन फ्रॉम ईच स्कूल, paid 1000 cash on the mementos, and the topper 5000, runner up 5000 and the winner 10,000 कैश प्राइज। मैक्सिमम स्किल्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये साल सेटविन से भी हम फ्रेंचाइज कर रहे हैं ग्लोरी जूनियर कॉलेज टेक्निकल स्किल्स और कंप्यूटर कोर्सेज के लिए, विच विल बी हेल्पफुल फॉर दिस एरिया इन शाहीन नगर। स्कूल्स एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स विद द एजुकेशन दे विल गेट द life skills also and the academic personal development. हिंदुस्तानी तारिकीन वतन दुनिया के हर कोने में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। आज हम उस नौजवान की कहानी बताने जा रहे हैं। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से है। हमारी मुराद इंडियन इंटरनेशनल स्कूल IIS रियाद सऊदी अरब से वाबस्ता आमिर बिन तालिब के फर्जंद सालिम बिन आमिर से है। सालिम बिन आमिर ने कनाडा में आला तालीम हासिल करने के बाद एक नामवर कंपनी में बेहतर पैकेज पर नौकरी हासिल की है। आमिर बिन तालिब ने बताया कि सालिम बिन आमिर ने न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि अपने शहर और अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है और वो इंसानी खिदमत का जज्बा रखते हैं, जबकि इस शोबे में भी बढ़ चढ़ कर काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कनाडा के शहरों में तारिकीन हिंद की कसीर तादाद आबाद है जो रोज़गार से मुंसलिक है। यहाँ समाजी राब्ते के लिए वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ़ कम्यूनिटी प्रोग्राम्स का भी इनेकाद अमल में लाया जाता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी सईद अल फ़वाल की जानिब से मुनक़िद किया गया, जिसमें हैदराबाद दक्कन की मारूफ शख्सियात बशमूल डॉक्टर सैयद अली महमूद और दीगर ने शिरकत की। इसी तर्ज पर तलबा बरादरी भी अपने तौर पर कई प्रोग्राम्स मुनक़िद करती है। औरंगाबाद से दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने सालिम बिन आमिर को उनकी इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। GST रियासत की मईशत को तबाह कर रही है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आलूदगी बढ़ रही है। गाड़ियां खराब हो रही हैं। अकबर अवैसी का असेंबली में खिताब। रियासत तेलंगाना में 490 नए वेंटिलेटर्स की फराहमी। निम्स हैदराबाद को 150 मिलेंगे। असेंबली में वज़ीर सेहत का ऐलान। डॉक्टर मनमोहन सिंह इकनॉमिक यूनिवर्सिटी कायम करें। डिग्री कॉलेजेस में नए कोर्सेज मुतारुफ किए जाएं। खानगी यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। हुकूमत को कायद मजलिस अकबर अवैसी का मशवरा। मेरी लड़ाई जायदाद के लिए नहीं, इज्जत व एहतराम की लड़ाई है। कौंसिल में खिताब के दौरान KCR की दुख्तर कविता जज्बाती और अश्कबार। बैलेट पेपर पर बल्दी इंतखाबात करवाने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। बैलेट पेपर के लिए दरकार बैलेट बॉक्स बतूरे पेशगी तैयार रखे जाएं। ओहदेदारों को दी गई हिदायत। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।